Hello, Yes, sir. ma'am. Yes, sir. Can we start? Yes, absolutely. Absolutely. Okay. So, good morning, everybody. So, today we have a special session. Let's play the game of family business with Professor Samish Dalal. So, give you a little intro of Sir. So, Sir specializes in the field of negotiation, entrepreneurship, and marketing. He has taught to more than 5,000 students of family businesses and has a touch base with more than 800 Indian family business. He is an MBA from University of Queensland and also studied at Harvard Business School. He is also an TEDx speaker and has trained more than 4,000 undergraduate and postgraduate students for career planning. Welcome, sir. Over to you. Thank you, Deepal ma'am. Thank you very much. And guys, for all the wonderful audience who's there. So Deepal madam is currently playing a couple of roles, and that's something that is my starting point of a family business. Uh, so initially, let me first obviously welcome everyone. So all right, guys, good morning and welcome to this session. And Deepal ma'am, thank you very much for a wonderful introduction, guys. The reason why I'm sincerely appreciating her special efforts is for two things. Number one, that her husband's currently at home quarantined, and she has a toddler of 1 year and 3 months, and she's looking after him and him, both of them, and also managing this. So thank you very much, Deepal ma'am, for that wonderful time slot that you devoted. And my wonderful participants, guys, welcome to this session. Let's play the game of family business, okay? And we're going to have it very, very interactive in terms of the chat box. So the chat box is going to be one place wherein you and I are going to keep on talking throughout our session. You'll be allowed to type in your questions also a little later at the end of the day, but more importantly, you'll be allowed to respond on my questions, क्योंकि आज हम actually game खेलने वाले हैं. या इनफैक्ट हम एक गेम खेलने वाले हैं. और क्यों एक गेम खेलने वाले हैं? क्योंकि फैमिली बिजनेस का एक गेम खेलने वाले हैं, लेकिन ट्विस्ट के साथ. ऑब्वियसली मैं देख रहा हूं पार्टिसिपेंट्स में, आई हैव सम ऑफ माय करंट स्टूडेंट्स एज वेल एंड सम ऑफ माय अर्लियर स्टूडेंट्स एज वेल. सो द आइडिया इज, गाइस, yes, they all know me well. For the ones who are probably new might not know me, so उनको मालूम है कि मैं कोई भी चीज क्लास में करवाता हूं, कोई भी एक्टिविटी कराता हूं, so it's always come with a twist, it's come with a change, it's come with some dimension of learning. And that's the exact reason why today's setup and today's activity is going to be. So that's going to be the idea. I'm going to be largely like this. मैं थोड़ी देर के बाद अपना स्क्रीन शेयरिंग बंद करूंगा and I'll be then fully visible, but otherwise my screen sharing will be there, my PowerPoint will be there, and we're going to go through a small activity. Okay, so guys, everybody be ready with your fingers on your chat box, with the fingers on your chat box, क्योंकि हम लोग एक गेम खेलने जा रहे हैं. All right, and let's begin with the game. It's a very small, simple, easy game. आपके सामने there'll be 4 photographs. Okay, 2 things you have to do. 1, जैसे फोटोग्राफ आता है आपको मुझे बताने का है कि किसका फोटोग्राफ है, एंड एंड में आपको इस क्वेश्चन का आंसर करना है. ये चारों चार के फोटो देखेंगे, देन यू विल बी एबल टू आंसर दैट. तो तब तक आंसर करना नहीं, तब तक वेट करना. खाली 4 जन को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करना कि who these 4 people are. Okay, identify, then you ये व्यक्ति है ऐसा करके. So that's the idea. So just keep this in mind. Okay, the first photograph. Any guesses who this person is? I would like to see in the chat box who this person is. Quickly, guys. A quick response is going to be very, very useful. Okay, I saw that first response coming in from the chat. Okay, let me see. No idea. That's fine if you don't have an idea. Others. Very, very. Okay, I'll give you a clue. Superb, Ayush. Fantastic, Ayush. Brilliant. That's Warren Buffett's very early photo. Warren Buffett's very early photo. Guys, that's the idea. That got to be fast enough. Fantastic, Ayush. We go to the next one. The next one is, I'm sure you guys know this.
I'm sure you guys know this. I would like to see who types in fast. Okay, Ambani's family, Devendra Mehta, that was quick. Ambani's Dhiru, Anil, Mukesh, fantastic. The Ambani fam, that's fantastic, fantastic, brilliant. Okay, just keep this in mind that this photo is obviously not the latest, recent photo or the latest photo. Okay, this photo is pretty early photo. So think about it that why this photo is here. Anyways, we keep going to our journey. Anybody who this photo is? Anybody who this photo is? Which photo? Come on, guys, tell me. Should be easy. The Birlas. Okay, Pandral Nayak, Birlas. I wanted a more specific answer. Anil Goyal on the nail. Aditya Birla family. Somebody can identify the eldest of that family. Eldest of the family. Anil ji, if you can write down the name of all the three that you can see. Very good. AT. I don't know what AT stands for, but yes, AT. So that's right. GD Birla ji. And then you have, which is the younger one? Younger one. That's important. Come on, guys. The younger one. Correct. Yes. 80 wanted to type it very quickly, so he just do something and then he like Kar and Birla, but then what he meant to say is yes, Kumar Mangalam Birla. No, Devendra ji, it's not Yash Birla. It's Kumar Mangalam Birla, Aditya Birla, and GD Birla Saab. Correct. Fantastic. And the last one. Get on your nerves. 3, 2, 1. I'm sure guys gonna like this typing it. Correct. Oh my goodness. Okay, Amol Mehta, that was wonderful. You come up to the extent of saying God. Okay, like that makes sense. Fantastic. Super. I'm glad. Shilpa, madam, can we know the name of the first photo was Warren Buffett? Okay. Guys, what is common in all these four? Your time starts now. 15 seconds. What is common in these four people or these four photographs? I'm still not got the right answer. High aim in life, hard work, determination, no. Anil ji, you are very close to the answer. You can explore your answer more. Anil Goyal, early morning wake up. Your answer is very close, but not there. You can still work on your answer. Anil ji. They all started on their own and passed on to their what? No Shilpa Bapna. Let's understand that. It's not then passed on to their family. So we don't know who is the next generation in Warren Buffett family. अनिल जी थोड़ा और सोचो, आप ऑलमोस्ट क्लोज हैं, थोड़ा और सोचो. आप डेली मॉर्निंग हैबिट को छोड़ दो अनिल जी और आप अर्ली वाले पर वर्ड को पकड़ने की कोशिश करो. अर्ली वाले वर्ड को पकड़ने की कोशिश करो. Found one thing and stuck to it. 18. No, my dear. थोड़ा और सोचो. Varun Gupta reached to the top in respective field. Superb. Devendra Mehta is the winner. Superb. Fantastic. Super fantastic. Unbelievable. Devendra ji, superb. Fantastic. Awesome. Brilliant. Guys, started early. Let me spend some time. No response required. Let me spend some time. No response required. Guys, इन चार लोगों के बारे में सिर्फ एक ही चीज बताई जा सकती है कि स्टार्ट अर्ली. मतलब यदि लंबी गेम खेलना है, लंबी इनिंग खेलनी है, तो आपको उस टाइम पे स्टार्ट करना चाहिए जब आपको ये भी नहीं पता है कि धंधा क्या है. एंड फैमिली बिजनेस में ये एक इनबॉर्न इन गिफ्टेड चीज है. हम में से बहुत सारे लोग जब घर पे आते थे स्कूल से या इवन किंडरगार्टन से, आप समझ लो मैं कौन सी टाइम की बात कर रहा हूं, किंडरगार्टन से या स्कूल से, मैंने कॉलेज वर्ड बोला ही नहीं. तो ये टाइम पे हमारे पेरेंट्स, चाचा, मामा, मे भी दादा, सब धंधे में थे या धंधे में काम कर रहे थे. तो वो लोग आके कुछ बोलते थे,
अरे मुन्ना कैसा गया आज का दिन, मतलब आज तो दुकान के गल्ले पे 4 लोग ज्यादा आए थे, है ना, ये पहले लोग नहीं आते थे। ये आपके दादा ने आपके पप्पा के साथ कॉन्वर्सेशन किया और आप उस वक्त एक किंडरगार्टन के बच्चे थे। हैव यू गॉट योरसेल्फ इन्वॉल्व्ड इन द बिजनेस? आंसर इज यस। क्योंकि जब दादा ने अपने बेटे को यानी कि मुन्ना को पूछा कि आज ऑफिस पे या दुकान पे 4 नए लोग आए थे जो हमको जानते नहीं थे, तो ये आपने सुना, बड़े होके आपने उसको नया वर्ड दिया, कस्टमर एक्विजिशन। ये आजकल का वर्ड है, लेकिन उस वक्त तुम्हारे दादा ने सिर्फ एक ही वर्ड बोला कि नए कस्टमर आए थे। गाइस समझो, उस वक्त आप एक छोटे से बच्चे थे, लेकिन आपके कानों में वो जो आवाज गई है 5 साल 10 साल के बाद, जब आप शायद 15 साल के थे, वो 5 साल की उम्र थी या 6 साल की उम्र थी, तो 15 या 16 साल की उम्र पे थे, जब आप 9th या 10th या 11th स्टैंडर्ड में थे, तब आपके अंदर एक अलग वर्ड आता है कि मेरे बिजनेस में कस्टमर आते हैं, और नए कस्टमर आते हैं तो मेरे फादर और मेरे ग्रैंडफादर डिस्कस करते हैं। मेरे ग्रैंडफादर एंड फादर डिस्कस करते हैं। गाइस, इट इज नॉट ए नॉर्मल थिंग इन अ फैमिली बिजनेस। ये गिफ्टेड कैपेबिलिटी है। मेरे हिसाब से आपको ये सोचना चाहिए कि वाओ, इज दैट समथिंग दैट वी आर मिसिंग आउट ऑन। बहुत सारे बच्चे मुझे एक सवाल करते हैं कि सर, विच इज द राइट एज टू ज्वाइन ए फैमिली बिजनेस? और मेरा आंसर पता है क्या है? यस्टरडे। I think that sets the right answer very clearly. Yesterday. तुम्हारा सही उम्र कौन सा है ज्वाइन करने का? वो आज नहीं है, कल था। तो आज तो ऑलरेडी तुम लेट हो। अनगिनत इंटरव्यूज वॉरेन बफे जी के नाम के ऑलरेडी पब्लिश हो चुके हैं। उसमें से एक बहुत इंटरेस्टिंग रहता था कि वो बोलते थे कि यदि मुझे 18 की उम्र पे मालूम पड़ा कि कैसे इन्वेस्ट करना है, तो यदि मेरे को 8 की उम्र पे मालूम पड़ता था, I would have been better off. That's the whole idea, guys. That's the whole idea. मतलब ये अपन फोटो देख रहे हैं मुकेश अंबानी या अनिल अंबानी का, कितने छोटे थे, मे बी उनकी वो आयु नहीं थी जिनको टर्न की प्रोजेक्ट वर्ड मालूम पड़ता था, आयु नहीं थी उनकी, लेकिन इन्वॉल्व हो गए, काम करना शुरू कर दिया। व्हाट हैपेंड? अपने फादर को फॉलो करना शुरू कर दिया। हो सकता उनमें से कोई एक पैशन अपने अंदर डेवलप करना शुरू कर दिया। सक्सेस या फेलियर के ऊपर मत जाइए, सक्सेस या फेलियर के ऊपर मत जाइए, क्योंकि वो 10 20 30 40 साल के बाद की परिस्थिति है। कब सीखना शुरू कर दिया ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए ये फोटो है। बाजू में जीडी बिरला जी का फोटो है ऑब्वियसली, एंड यू हैव द फोटोग्राफ ऑफ आदित्य बिरला एंड कुमार मंगलम बिरला, ओके। एंड द आइडिया बिहाइंड दोस फोटोग्राफ्स इज आल्सो वेरी वेरी सिंपल। लेट मी हैव आई हैव कपल ऑफ पीपल raising hand. Please don't raise hand, it just causes a little bit disturbance. In case you have a point to say, may put it in the chat box and let me continue. All right, so बाजू में जीडी बिरला जी का फोटो है, उसके बाजू में कुमार मंगलम बिरला का फोटो, उसके बाजू में आदित्य जी का फोटो है। एवरीबडी नोज दैट आदित्य जी का एज, उस एज पे उनका डेथ हो गया, विच इज परहैप्स नॉट द राइट एज, पीटी अर्ली एज में डेथ हो गया। तो कुमार मंगलम बिरला मे बी अ यंग गाय, चार्टर्ड अकाउंटेंट, अग्रीड, बट 22 23 maybe 23 24 joins the business, and you know where he has taken the business to the level. Guys, what is common amongst these people? Start early. फैमिली बिजनेस में जितना जल्दी हो सके उतना चालू कर देना चाहिए। एक विपरीत थॉट, एक अदर थॉट। द सेकंड थॉट इज कि कभी कभार व्हेन यू स्टार्ट इन द बिजनेस वेरी अर्ली, क्या होएगा कि आप में से कुछ लोगों को शायद कुछ वर्ड समझ में भी नहीं आएंगे। दैट्स ओके, बात करो। आपके फादर उस वक्त समझाने की परिस्थिति में नहीं है, दैट्स परफेक्टली ओके। क्यों? क्योंकि उनको बेचारे को समझाना नहीं आता है, विच इज ऑल्सो ओके। कोई जरूरी नहीं है कि अपना फादर इमीडिएटली अपने डाउट को क्लैरिफाई करे। अरे उसने बातों बातों में ऐसा बोला कि अरे बड़े भैया, अब आपके 2 चाचा एंड पप्पा साथ में बिजनेस में है, अरे भैया वो कल सुबह एलसी खुलने वाला था वो अपना एक्सपोर्ट के लिए, तो जरा वो चेक कर लेना ना सर, तो पेमेंट आ जाए, जरा देख लेना। एलसी वर्ड नहीं मालूम पड़ा, दैट्स ओके।
नो बिग क्राइम, 1-2 साल के बाद पूछ लेना। वो जो जार्गन्स हैं वो आपके अंदर एम्बाइब होने लगते हैं। एम्बाइब मतलब घुसने लगते हैं, जगह बनाते हैं। एंड जब वो जगह बनाते हैं तो धीरे धीरे इंस्टीट्यूशनलाइज यानी कि प्रस्थापित हो जाता है। एंड जब ये जार्गन्स आपके अंदर प्रस्थापित हो जाते हैं, माय डियर फ्रेंड्स, याद रखना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, ये जो जार्गन्स आपके अंदर प्रस्थापित हो गए हैं वो आगे चल के आपके अंदर का नॉर्मल वोकैबुलरी बन जाएगा, नॉर्मल वोकैबुलरी बन जाएगा। सो when is the right time to start being a part of the business? Start early, नंबर 1। नंबर 2, जब अर्ली होते हैं ना तो गलतियां माफ होती है, इसलिए थोड़ी गलती भी कर ले कोई प्रॉब्लम नहीं है। तीसरी एक बात, जब शुरुआत जल्दी करते हो हो सकता है आपको 2-2 जनरेशन का फायदा हो जाए। अभी मैं एक लड़के को मिला था, हुबली में गया था, ग्रैंडफादर भी बिजनेस में है, फादर भी बिजनेस में है। इमेजिन आपको 2-2 जगह का लाभ मिल रहा है, 2-2 जगह का लाभ मिल रहा है। इससे ज्यादा आपके कौन से अच्छा कर्म का फायदा है? उसका यंगर ब्रदर भी बिजनेस में, उसकी दादी माँ भी अभी क्या कहते हैं पिटी यंग है उस एंगल से। शी इज वेयरिंग अ पंजाबी इन द फैमिली, गुड मॉडर्न फैमिली, अच्छा है। और ऐसे परिवार में जब आप बड़े होते हैं तो जो कॉन्वर्सेशन होता है वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग होता है। बच्चा सीखता रहता है, सीखता रहता है, सीखता रहता है। नाउ दिस बॉय कुड बी ऑफ 22-23 एंड अभी उसके पास दादा का भी साया है, पापा का भी साया है। जस्ट इमेजिन कितना क्वांटम ऑफ लर्निंग है, एक्सपीरियंशियल लर्निंग का जो आपको फायदा है। मैं एक लाइन बोलता हूं, ध्यान से सुनना माय डियर बच्चा लोग, बी एक्सट्रीमली ग्रीडी, बी एक्सट्रीमली ग्रीडी। क्यों? क्योंकि आपका अर्लियर और उसके ऊपर का अर्लियर जनरेशन सनातन आपके पास नहीं होने वाला है। उससे लर्निंग के लिए ग्रीडी हो जाओ। जितना जल्दी स्टार्ट करोगे उतना जल्दी सीखना शुरू कर पाओगे, जितना जल्दी स्टार्ट करोगे। माय वाइफ यूज्ड टू टेल मी कि व्हेन शी वाज 9 इयर्स ओल्ड, उसने पहली बार रोटी बनाई तो मैं उसको हंस रहा था, उन्होंने फेंक रही है। बोले क्या फेंक रही हूं, मैं तेरे सामने फेंक के क्या करूंगी, वो भी तो पॉइंट है। अब मेरे सामने ऐसा दिखाएगी कि मैं जल्दी बनाना सीख गया, तो व्हाट्स अ बिग थिंग। पर एक बार ऐसे कैजुअल कन्वर्सेशन में आई वाज टॉकिंग टू माय मदर इन लॉ, मैंने बोला कि मम्मी आपने ये इसको 9 ईयर की थी तब से सिखा दिया था क्या? बोले सिखाना नहीं था, माय ग्रैंडमदर वाज, मतलब मेरी सासू माँ थी, ओके, तो वो ऐसा चाहती थी कि ये सीख जाए उनकी आंखों के सामने। तो बोलती थी कि गीता तू सिखा, और उसने सिखाया और उसने सीख लिया तो बड़ा अच्छा लगा। बोले अब से तो मैं इसके हाथ की रोटी खाऊंगी। सडनली समथिंग एल्स हैपेंड गाइस, समथिंग एल्स हैपेंड, 3 थिंग्स हैपेंड। द ग्रैंड मदर को पता चल गया कि ये मेरी ग्रैंड डॉटर खाना बना सकती है तो नई नई चीजें भी बना सकती है। सेकंड थिंग, लर्निंग एप्टीट्यूड खुल गया, हाँ सीख सकती है, तो ये नहीं और कुछ भी सीख सकती है। तो then she was sent to Bharatnatyam class, then she was sent to a karate class. I mean, wow. जो उस टाइम पे, मतलब right now she is 45, when she was 9, I'm talking about a 36-year-old story, 36-year-old स्टोरी पे लड़की को कराटे क्लास में भेजने का एक ट्रेडिशनल गुजराती फैमिली, डिफिकल्ट। पर लर्निंग एप्टीट्यूड से परिवार में फर्क आता है, परिवर्तन आता है। एक फाइनल पॉइंट, जब आपके फैमिली में आप कुछ सीखना शुरू करते हैं तो प्लीज डोंट स्टार्ट अटैकिंग योर फैमिली बाय आस्किंग क्वेश्चन जिससे वो अनकंफर्टेबल हो जाए। मान लो फादर अभी आए हैं, आके उन्होंने ऐसा बैग रखा, ऐसा शांति से बैठा, पानी लाओ ना, हाँ बेटा कैसा रहा स्कूल, हाँ अरे पापा आप बोल रहे थे ना परसों वो क्लाइंट आने वाला था तो आया क्या? नहीं नहीं आया। क्यों? क्यों नहीं आया? वो उसको कुछ काम आ गया था तो नहीं आया। नॉर्मल कॉन्वर्सेशन हो रहा है और अपन उसके ऊपर पूछ 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 कर रहे हैं। उस टाइम पे अरे तू शांति रखने भाई, अभी कितना मैं तेरे को जवाब दूं? अरे अपन तो देखो ना, अभी तो मैं आया हूं तो कितना। वेट, वेट फॉर द मोमेंटम टू सेट इन। आए, शावर ले लिया, खाना खाने बैठे हो, ऐसा शांति से बैठे हो, घर में फर्नीचर भी नहीं है,
शुरुआत का समय है, शायद जमीन पे बैठे हो, चटाई पाट लगा के बैठे हो और उस टाइम पे अपने फैमिली के साथ बात करने का कोई भी व्यक्ति का मूड आता है, पर शायद धंधे का मूड नहीं भी आए, खाते खाते ऐसे बात करेंगे कि साले साहब का फोन आया था, वो मेरठ में शादी के लिए जाना है ना, हाँ, ऐसी बात कर रहे हैं, बात करते करते यू गो टू वन स्टेप एंड तू क्या पूछ रहा था, अरे देखो बेटा वो जो आने वाले थे ना अंकल, उन्होंने हमको एक दूसरा आदमी भेज दिया, वो नहीं आए, पता है क्यों, एंड देन ही माइट एंड अप टेलिंग अ स्टोरी। सुपर गाइस, स्टार्ट अर्ली का एक फायदा है, आपका आईज, ईयर्स, एंटेना सब कुछ खुला रखो, आईज, ईयर्स, एंटेना सब कुछ खुला रखो, रिसीव करते रहो, रिसीव करते रहो, इतना मजा आएगा, इन नेक्स्ट 5 years टाइम यू विल बी अ चेंज्ड पर्सन। सो डोंट गो टू इवन एनी अदर प्लेस टू लर्न, स्टार्ट लर्निंग इन योर फैमिली बिजनेस, और अपने फैमिली बिजनेस में जो हो रहा है उसको पहले दिन से सीखना शुरू करो गाइस। स्टार्ट अर्ली इज वन सिंपल मैसेज। सेकंड एंड फाइनल मैसेज ऑन दिस, मेरा बिजनेस है, मेरे पापा उधर आते हैं, अब मैं 20-21 साल का हो गया हूं, मेरे पापा बोलते हैं काम कर, तू कोई और बिजनेस में जाके सीख के आ। जरूरी है क्या कि वो दूसरा वाला अपने को उतना ही सब एक्सपोजर देगा जितना हमको मेरे फैमिली बिजनेस में मिल रहा है? मे बी नॉट। ऐसा भी हो सकता है कि दैट पर्सन माइट इवन एंड अप शोइंग ओनली अ पार्ट ऑफ इट, लॉजिस्टिक दिखा दिया, गोडाउन दिखा दिया, पीपल हैंडलिंग दिखा दिया, ये दिखा दिया, अरे अपने को की चीज है परचेज, वो तो मालूम ही नहीं मेरा, अरे प्रोडक्शन वो तो मालूम ही नहीं पड़ा, ऑपरेशंस मालूम ही नहीं पड़ा, मशीन कहां से लिया मालूम ही नहीं पड़ा, कौन सा ऑयल जाता है मालूम नहीं पड़ा, लुब्रिकेंट किस तरह यूज करना मालूम नहीं पड़ा, कितने टन का माल जाता है ये नहीं मालूम पड़ा, टेम्पो का टर्निंग रूट क्या होता है, टेम्पो का कितना लोडिंग होता है, कितना अनलोडिंग, कुछ नहीं मालूम पड़ा। अपना धंधा अपना होता है। Start learning in your own business. In your own business, and that too at the early age. Anyways, guys, so that was my first submission. What is common in all these people? Get ready, my dear friends. I got a good audience today. And get ready. मैं आप लोगों को दूसरा क्विज लेके जाऊंगा। मैंने आपको पहले बोला था, I'm going to ask you, keep asking you questions. So get ready. What is unique in these team games? What is unique in these team games? ध्यान से देखना। What is unique in these team games? ध्यान से देखना। Chat box open, guys. Start typing. Start typing. Okay, with India winning England yesterday in the T20, हम लोग already एक अलग हाइट पे हैं, like wow wow फील हो रहा है। What's unique in these games? दूसरा स्लाइड भी आना जरूरी है, तो आपको पता चलेगा कि कौन सी गेम्स की बात हो रही है। फैंटास्टिक, फैंटास्टिक, कुछ आपके सामने दिख रहा है। ओके, वी ऑल नो विच गेम वी टॉकिंग अबाउट। एंड नाउ द थर्ड वन, व्हाट्स यूनिक इन दीज टीम गेम्स? Fantastic. I'm going to sit charting in the box. Unity, coordination. Nah, guys. No, yaar. Please. Please. No. Guys, I want you to give me answers which are unconventional. Kushali Shukla. Super. Fantastic. Super duper. Kushali, brilliant beta. ये तो अपनी बच्ची है। Super. Fantastic. No. विबर, पार्टिसिपेशन अलग वर्ड है, अमोल बोल रहा है सिंक अलग वर्ड है, एंड कुशाली, दैट्स द राइट आंसर। द आंसर इज रूल्स। व्हाट्स यूनिक इन दिस टीम गेम्स? रूल्स ऑफ द गेम। रूल्स ऑफ द गेम नहीं। Anyways, guys, all the people who have made the effort, good answer. Let's look at why and what. Okay. What's unique in these team games? The rules. Let me explain this word. Important है आप लोग को सबको समझने के लिए। What's unique in these team games? पहली, क्रिकेट। क्रिकेट में एक टीम होती है जिसके सिर्फ 2 ही रिप्रेजेंटेटिव बाकी के 11 लोगों के बीच में खड़े होते हैं।
एंड ये 2 के ऊपर 11 लोगों का जबरदस्त अटैक होता है। अलग अलग टाइप का अटैक होता है, बैटिंग होती, अरे बॉलिंग होती है, फील्डिंग होती है, अपील होता है, स्लेजिंग होता है, अटैक होता है। और उसमें अपना काम कंपोजर मेंटेन करते हुए अच्छी बैटिंग करके अच्छे रन्स या स्कोर बनाना होता है। इसका मतलब फोकस इज ऑन योर सेल्फ, योर माइंडसेट, योर टेम्परामेंट एक्सेट्रा। लेकिन बाजू में फुटबॉल का जो गेम है, इट्स अ गेम नॉट ऑफ सेल्फ सेंट्रिक पीपल, इट्स अ गेम ऑफ पासिंग। आजकल तो फुटबॉल में किसने किसने किस व्यक्ति को असिस्ट किया उसका भी बहुत वैल्यू है। असिस्ट, व्हाट इज द वर्ड असिस्ट मीन टू यू गाइस? अभी दीपल मैडम थी, शी वाज असिस्टिंग मी। क्या मैं अकेला कामयाब हो सकता हूं? नहीं हो सकता हूं, ये मुझे स्वीकारना है। ये मुझे स्वीकारना है। क्यों? क्योंकि मुझे जब बॉल पास ऑन होगा तब मैं आगे लेके जाऊंगा। जरूरी नहीं है कि मैं गोल करूंगा, दूसरा कोई व्यक्ति भी कर सकता है। एंड दैट्स इंपॉर्टेंट गाइस। रूल्स ऑफ द गेम आर सो इंपॉर्टेंट। इन सभी के रूल्स अलग हैं, सभी के रूल्स अलग हैं। सो मैं दूसरे गेम पे था, फुटबॉल पे। वहां पे रूल है पास करने का। हर बार दम लगा के लात मारने की बात ही नहीं है। कभी कभार हल्का पास भी चलेगा, कभी कभार जोर का पास चलेगा, कभी कभार पैर से करना पड़ेगा, कभी छाती से करना पड़ेगा, कभी सर से करना पड़ता है, कभी कभार फ्लिप मारना पड़ता है, तो कभी कभार अपने को ये 2-3 हेडिंग से पास ऑन करके भी बॉल को आगे लेके जाना पड़ता है। द रूल ऑफ द गेम इज पास। जबकि पहले गेम में रूल पासिंग का है ही नहीं, पैसिंग पासिंग का है ही नहीं। सो दैट इज द सेकंड थिंग। अब तीसरी वाली तस्वीर ध्यान से देखो गाइस। एक जन राइट करता है और दूसरे वाले के पास लेफ्ट साइड का है, ऐसा देखना बरोबर। और उसके एग्जैक्टली सामने एक और व्यक्ति बैठा है, यू नो द वन हु गिव्स इंस्ट्रक्शन। ये गेम बहुत डिफरेंट, इसको रोइंग बोलते हैं, ROWING। आप में से बहुत सारे लोगों को मालूम होगा। बट 2-3 इंटरेस्टिंग फैक्ट्स इसके रूल्स के बारे में बताता हूं। मैं यदि आपके सामने अभी देख के बात कर रहा हूं, माई राइट इज योर लेफ्ट एंड माई लेफ्ट इज योर राइट, बोलते वक्त, इंस्ट्रक्शन देते वक्त, राइट 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 राइट, मेरा लेफ्ट उंगली है, देखो गाइस, मैं ऐसे कर रहा हूं, राइट 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 राइट, डीपर 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 डीपर, राइट, फास्टर 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 फास्टर। मैं लेफ्ट हाथ से राइट वाले को इंस्ट्रक्शन दे रहा हूं, क्योंकि वो लोग मेरे आवाज को और मेरे एक्शन को कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। पर यदि मैं मेरे राइट पे चला जाऊंगा तो हो सकता है कि वो लोग गलती कर ले। इमेजिन, जो सूत्रधार है उसके पास कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द एंटायर टीम टू मेक श्योर कि वो राइट डायरेक्शन में जाए। गाइस, हर फैमिली बिजनेस जो गेम खेलता है ना, उसके अपने खुद के रूल्स होते हैं। 2 बच्चे आयरन एंड स्टील का ट्रेडिंग का काम करते हैं, दोनों के फैमिली बिजनेस एकदम सेम टू सेम हो सकते हैं, हर तरीके से, कॉम्पोजिशन, लोग क्या कहते हैं, डेमोग्राफिक्स, एवरीथिंग सब कुछ सेम, फिर भी दोनों के प्रॉफिट्स रेडिकली डिफरेंट हो सकते हैं। व्हाई? बिकॉज दे हैव डिफरेंट रूल्स ऑफ द गेम। दे हैव डिफरेंट रूल्स ऑफ द गेम। अंडरस्टैंड दैट वेरी क्लियरली गाइस। डिफरेंट रूल्स ऑफ द गेम। क्योंकि कोई गेम मैं इस तरह से खेलता हूं, कोई गेम मैं इस तरह से खेलता हूं। इंपॉर्टेंट ये नहीं है, इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि मैं कौन से रूल्स या कौन से तरीके से खेलता हूं। इंपॉर्टेंट ये है कि मैं जिस तरह से गेम खेल रहा हूं तो उस गेम का मेरे को रूल मालूम होना चाहिए। यदि मेरा एक बच्चा है, उसका कश्मीरी गेट पे दुकान है इन दिल्ली, एंड वो ऑटोमोबाइल कंपोनेंट का काम करता है, तो उसके आगे की जो शॉप है वो रिटेल का काम करती है, उसके पीछे जो शॉप है जो वो होलसेल का काम करता है, उधर उसका गेम का रूल डिफरेंट है, वहां की गेम का रूल डिफरेंट है। रिटेल पे काउंटर पे वो 5 पैसे का भी क्रेडिट नहीं देता है, बोले मान लिया तो इमीडिएटली पैसा, जैसे ही पीछे चला जाता है क्रेडिट चलती है। अरे यार, सिंपल सी चीज, सेम प्रोडक्ट ब्लडी डिफरेंट कैसे? रूल्स आर डिफरेंट, रूल्स आर डिफरेंट। हर फैमिली बिजनेस गेम करता है, खेलता है, धंधा, और हर फैमिली बिजनेस का अपना एक तरीका है, वो तरीके को हम बोलते हैं रूल्स। माय सेकंड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फाउंडेशन ऑफ द डे,
जो पहले मैंने बताया था, स्टार्ट अर्ली, मेरा भी दूसरा फाउंडेशन याद रखना। हाउ मेनी ऑफ अस स्पेंड टाइम टू अंडरस्टैंड द रूल्स ऑफ आवर फैमिली बिजनेस? पापा 60 दिन का क्रेडिट देते हैं, हम धंधा में चालू कर दिए। अरे पापा 60 दिन का क्रेडिट क्यों देते हैं? चुप, रॉन्ग क्वेश्चन। पापा हमने 60 दिन का क्रेडिट देने का कब डिसाइड किया था एंड क्यों डिसाइड किया था, किस परिस्थिति में डिसाइड किया था? मूड में होएंगे, पापा बोलेंगे बेटा एक्चुअली क्या था कि हम कभी 60 दिन का क्रेडिट देते ही नहीं थे, पर ये कोविड टाइम्स आया ना, तो ये भाई साहब अपने साथ बहुत पुराने हैं। मतलब हमारी तो जब एक खोली थी ना, तब से हमसे मान लेते हैं। ये 60 नहीं, ये 90 दिन मांगता तो भी मैं उसको क्रेडिट दे देता। रिलेशनशिप इज द पाइवोटल इन माय फैमिली बिजनेस। मैं रूल सीखा। हम में से कितने लोग इस चीज को अडेप्टेबल रहते हैं? सोचो। अरे दुनिया में जो होता है उसको अडॉप्ट करना जरूरी बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इट इज हैपनिंग देयर, इट इज हैपनिंग फॉर ए वेरी वेरी नॉट ए वेरी स्पेसिफिक जेनरिक रीजन होता है। कोई बिजनेस वाला ऐसा 60 दिन नहीं देता होगा और वो 30 दिन में देता होगा, जरूरी नहीं कि वो ज्यादा प्रॉफिट करता है, जरूरी कोई रूल नहीं है ऐसा। हम अपने हिसाब से रूल को कैसे मॉडिफाई करते, किस तरह से रखते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। पर नो द रूल्स ऑफ द गेम वेरी क्लियरली। एक छोटा सा मस्त किस्सा सुनाता हूं। आई टीच नेगोशिएशन along with general management and marketing to my students. अब नेगोशिएशन का टीचर है तो ऑब्वियसली ये दीपल मैडम है, सबीना मैडम है, ये भी कभी ऐसे उम्मीद रखते हैं सर आप नेगोशिएशन सिखाते हो तो अच्छा अच्छा नेगोशिएशन भी करते होंगे। अरे दिल लेने गया, नॉट नेसेसरी यार कि अपन सिखाते वो बेटर ही हो सकता है। मैं बताता हूं, हकीकत बताता, सुनो ध्यान से। तो एक बार मुझे नेगोशिएशन की कुछ किताबें चाहिए थी, तो मैंने एक वेंडर को बुलाया। बोलता है कि सर मैं 30% क्रेडिट, अरे 30% डिस्काउंट देता हूं। अरे मैं तो वेरी गुड 30% डिस्काउंट तो बहुत अच्छी बात है। दूसरे वाले को बुलाया तो उसने बोला कि मैं सर 20% डिस्काउंट देता हूं। मैं तो भाई साहब मेरे पास 30% वाला है। बोलता है ठीक है, आप लेना चाहे तो ले सकते हैं मुझसे। अरे बाप रे, इतना एटीट्यूड। मैं तीसरे वाले को फोन करके बुलाया, वो आके मेरे को बोलता है कि सर आपको चाहिए तो बोलिए। नहीं मेरे को डिस्काउंट कितना देंगे? बोले सर आई डोंट गिव डिस्काउंट। मैं तो आई हैव समबडी एट 30%, आई हैव समबडी एट 20%, और आप जीरो डिस्काउंट, आपका नंबर नहीं लगेगा। दैट्स ओके सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यदि आपको कभी चाहिए तो मेरे को बोल देना। ठीक है। मैं सबीना मैडम को ऐसे ही पासिंग में बोला था, दीपल को भी बोला था। मैं दीपल मैडम देखो ये बंदे को एटीट्यूड बोलते हैं, और मेरे को हंसते हंसते बोलती हाँ सर पर क्या करे, ऐसे लोग होते भी हैं। हाँ दीपल मैडम क्या करे, एंड हम लोग की बात यहीं पे खत्म हो गई। एक दो वीक के बाद मैंने बोला कि मैडम मेरे को अपने नेगोशिएशन का किताब देने का स्टूडेंट्स को, तो वो किताब चाहिए, जरा देखो ना अपने गोडाउन में है कि नहीं। तो जाके उसने रूम में चेक किया, आके दौड़ के आई, सर है लेकिन 12 ही है। मतलब 12 से क्या होएगा यार, अपने को 100 देने की है। सॉरी सर पर 12 ही है। मैं तो वेंडर को फोन करो, वो 30% डिस्काउंट वाले को, जरा उसको बोलो कि मेरे को दे दे। उसको फोन किया, बोलता है मैडम आपको कितना बुक चाहिए? बोले कि एक काम करो 100 बुक दे दो ना, क्यों मैं 12 बफर में रखूंगी, मेरे को 100 बुक दे दो। हाँ मैडम लेकिन वो मिलेगी आपको 2 वीक के बाद। अरे 2 वीक नहीं भाई, तुम मेरे को कल चाहिए, अरे आज शाम तक चाहिए, मेरे को अभी स्टूडेंट्स को देने का है। फोन कर दूसरे वाले 20% वाले को फोन कर। 20% वाले को फोन किया, 20% वाला बोलता है ना सर आज नहीं हो सकता सर, मैं आपको 1 वीक में दे सकता हूँ। जो डिस्काउंट नहीं दे रहा था, मेरा मन किया, अभी चॉइस ही नहीं है, फोन किया उसको, और उसने मैं नहीं बात कर रहा था, दीपल मैडम बात कर रही थी। दीपल मैडम फोन पे बात करते करते सामने वाला बोला क्या मैडम वही आपका नेगोशिएशन वाला टीचर का कोर्स है क्या? जरा उसको फोन तो दीजिए। बोलती है वो अभी क्लास में है। बोले ठीक है मैं ही खुद डिलीवर करने आऊंगा। डिलीवर करने आया और इतना गंदा उसने मेरे को स्माइल दिया यूं करके मैं बोला भाई साहब समझ गया। एंड तब उसने एक मस्त बात बताई, सर सर मैं आपको इसलिए डिस्काउंट नहीं देता था क्योंकि मैं इन्वेंट्री पकड़ के रखता हूं, दैट इज माय कॉस्ट। मैं इन्वेंट्री पकड़ के रखता हूं, दैट इज माय कॉस्ट। दूसरा व्यक्ति 2 वीक के बाद मंगवाता है तो ही हैज द टाइम बैंडविड्थ। मेरे पास संक कॉस्ट है। यदि आप मेरे से 100 किताब नहीं बाय करते तो हो सकता है ना मेरी पड़ी रहती, तो इन्वेंट्री का खर्चा कौन उठाएगा? एवरी बिजनेस हैज इट्स ओन रूल्स। एवरी बिजनेस हैज इट्स ओन रूल्स। लर्न द रूल्स।
एंड गेम में जो बंदा रूल सीख लेता है, उस गेम के रूल को वो तोड़ मरोड़ भी करना सीख लेता है, तो गेम में जीतने का चांस उसका बढ़ जाता है, उसको चांस बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि रूल का वो मास्टर हो गया, उसको मालूम है कैसा है, क्या है, किस तरह से है। अच्छा, मेरे को इधर पास करने का, मेरे को इधर अटैक करने का, मेरे को ऐसा करने का, मेरे को ऐसा करने का। बंदे का टोटल फोकस गेम में आ गया, ग्रिप आ गई, कंट्रोल आ गया। अब जब बंदे के पास रूल आ गए तो उसके कारण ग्रिप आ गई, ग्रिप आ गई तो कंट्रोल आ गया। मैं टेनिस खेलता हूं, सुपाक देकर टेनिस खेला, बॉल को ऐसा दब पे लेके निकल गया, लाइन पे गिरा कि नहीं गिरा, यदि मेरे को रूल मालूम है कि बॉल का यदि थोड़ी भी लाइन पे मार्किंग है तो इट इज कंसिडर्ड इन, लाइन इज कंसिडर्ड इन, ऐसा मेरे को मालूम होता है, तो आई विल रेज एन ऑब्जेक्शन एंड से आई वांट इट टू बी चेक्ड अगेन, ऐसा करके मैं चेक कराऊंगा। यदि मेरे को रूल मालूम ही नहीं है तो नो द रूल्स। कोई भी गेम खेलो गाइस, रूल मालूम होना जरूरी है। इसलिए व्हाट्स यूनिक इन दीज टीम गेम्स? रूल्स, पहला चीज। दूसरा, इतना इंपॉर्टेंट, मैं टेनिस का उदाहरण चौक्कस दिया, लेकिन मैंने टेनिस का फोटो नहीं दिया। मैंने रीजन ये सब टीम गेम्स रखे हैं क्योंकि अ फैमिली बिजनेस इज अ टीम एक्टिविटी, नॉट माय एक्टिविटी। A family business is a team activity and not my activity. ये मेरा नहीं है, हमारा है। ये मेरा नहीं है, हमारा है। ये मेरा नहीं है, हमारा है। मैं यदि इसमें अपनी आइडेंटिटी ढूंढने जाऊंगा, क्रिमिनल, क्रिमिनल हो गया, गुनाह हो गया। बट यदि इसको मैं अपनी आइडेंटिटी बना देता हूं, सरेंडर, समर्थन, ताकत बन गई। ध्यान से सुनो, आई वुड लाइक टू स्टार्ट समथिंग ऑन माई ओन। आजकल के यंगस्टर्स का ढकोसला आइडिया जो है, उसको नई ऊंचाई पे लेके जा। मेरा है, मेरा बिजनेस है, हमारा बिजनेस है, एंड उसको नई ऊंचाई पे लेके जा। मैं सरेंडर करता हूं, ये मेरा धंधा है। मैं समर्थन करता हूं मेरे पारिवारिक विचारों के साथ, लेको दोनों साथ में मिलके खींच के एक नई ऊंचाई पे लेके जाएंगे, एंड दैट इज द होल आइडिया। इसलिए ये टीम गेम के फोटो जानबूझ के रखे, ऐसा एक्सीडेंटल कुछ नहीं है। टीम गेम इसलिए क्योंकि परिवार एक टीम एक्टिविटी है, परिवार एक सोलो एक्टिविटी नहीं है। यदि फादर भी सोल प्रोप्राइटरी बिजनेस में है, जिसमें फादर अकेला ही चलाता है, लेकिन फिर भी आपकी मदर जो उसमें एग्री करती है आप धंधा करो, जो आपके ग्रैंडफादर हैं जो बोलते हैं हाँ दिख रहा तू धंधा कर, इस बार यदि पेमेंट बरोबर नहीं आती है कोरोना के कारण, तो इस बार हम दिवाली में कहीं बाहर नहीं जाएंगे, इस बार नए कपड़े नहीं खरीदेंगे, तुम्हारी दादी माँ बोलती है कि हाँ इस बार अपन फाफड़ा जलेबी नहीं खाएंगे, ये परफेक्टली ओके है, क्योंकि उन्होंने हमारे साथ मिलके फैमिली बिजनेस का हिस्सा बने हैं। अकेला व्यक्ति के पीछे इतने सारे लोगों का बूस्टर होता है, उसको फैमिली बिजनेस बोलते हैं। वो अच्छा काम करता है तो परिवार में सबको लाभ होता है। परिवार के लोग अनरिटर्न पार्टनर्स, शेयर होल्डर, स्टेक होल्डर्स होते हैं, अनरिटर्न। बहुत बार लोग मेरे को आके बोलते हैं कि सर क्या बात करते हो, मैं तो धंधे में कुछ किया नहीं। भाई साहब, जिस सेकंड पे आपके परिवार ने बिजनेस चालू किया, उस सेकंड से आप बिजनेस का एक हिस्सा हो गए हैं। फिर आप उसमें रेजिस्ट करते हो, ये आपकी शायद गलती है, और यदि आप उसमें न्योछावर सरेंडर करते हो तो यह आपकी खूबी है। अरे मैं एक नहीं 500 लोग इस दुनिया में हैं जिन सब के अंदर कोई ना कोई ऐब है, लिमिटेशन है, पर उस लिमिटेशन की बात नहीं करके, उस लिमिटेशन तेरा है, मेरा भी कोई लिमिटेशन है, मेरी भी कोई ताकत है, तेरी भी कोई ताकत है, आ मिलके हम संगठित होके अपने धंधे को एक नई ऊंचाई पे लेके जाते हैं। दैट वुड बी द गेम चेंजर, दैट वुड बी द गेम चेंजर। बट प्रॉब्लम यह है कि हम इस गेम चेंजर को कभी कभार इग्नोर करते हैं। क्यों? क्योंकि उसके रूल्स हमको सीखने नहीं है या हमको समझ में नहीं आते हैं। पेशेंस एक ऐसी क्वालिटी है जो अपने को रूल्स सिखा सकती है। पेशेंस नया है,
नहीं मालूम है तो शांति, सुनो, समझो, सीखो, बाद में उसका हिस्सा बनो ने। अरे रूल नहीं मालूम पहले दिन तो रूल किसको मालूम होएगा? अरे नया है, गेम ही नया है, मैं जिंदगी में कभी खेला ही नहीं है। मीन जस्ट इमेजिन एक ऐसा टीम स्पोर्ट जिसमें सामने वाले व्यक्ति को आके दबोच के दबा के रखना पड़ता है। पता है कौन सा गेम? सामने वाली टीम के एक आदमी को बुला के दबा के दबोचना पड़ता है, एंड फिर उसको ऐसा दबोचने में पूरी टीम टूट पड़ती है, एंड फिर उसमें जीत हो सकती है। इमेजिन ये कौन से गेम की बात कर रहा हूं मैं, कौन से गेम की बात कर रहा हूं? अरे वाह, फैंटास्टिक शिल्पा जी, वेरी गुड नायक जी, वेरी गुड, कबड्डी, करेक्ट। मतलब बहुत सिंपल सा रूल है माय डियर फ्रेंड्स, बहुत सिंपल सा रूल है। हम लोग है ना बहुत बार इस चीज को यदि बारीकी से समझोगे तो बहुत खुश हो जाओगे, बहुत खुश हो जाओगे। हर गेम का अपना रूल है, उसमें प्लेयर पास ऑन नहीं कर सकते, कांड हो जाएगा। ओके, वहां पे अटैक होता है, लेकिन वहां पे 1% पे पूरे लोग अटैक करते हैं। जैसे क्रिकेट में आपके पास बल्ला होता है जिसमें मारते हैं बॉल को, वहां पे बंदे पे अटैक किया जाता है। वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच फॉर वेरी गुड पार्टिसिपेशन गाइस, एंड दैट गेट्स मी टू ऑलमोस्ट, नॉट ऑलमोस्ट, दैट गेट्स मी टू द लास्ट क्विज। क्विज तो चालू ही रहेगी, लेकिन इस बार थोड़ा डिफरेंट है। अभी जो नेक्स्ट क्विज आएगी ना, उसमें थोड़ा डिफरेंट है। व्हाट इज यूनिक टू दिस पीपल? एक ही झटके में पूरी इमेज आ जाएगी। ओके, आपको मुझे बताना है पहले कि ये कौन लोग हैं। आपका जो मैं जितना ऑडियंस को समझ रहा हूं, मैं जरा देख लूं एक बार ऑडियंस को। जब मैं ऑडियंस को देख रहा हूं, जो ऑडियंस है उसमें मुझे ऐसा पक्का लग रहा है कि ये जो भी चेहरे आएंगे आप फटाफट इसको आइडेंटिफाई कर पाएंगे, फटाफट आइडेंटिफाई कर पाएंगे, आई एम श्योर। ऑब्वियसली फॉर मी इट वाज अ वेरी वेरी बिग लर्निंग थिंग, सो मेरे लिए तो थोड़ा मुश्किल था, but for all the other people it's going to be a easy thing I suppose. Let me see how this goes. All right, okay, what is unique to these people? पहले तो आप पता लगाइएगा कि कौन है ये लोग, उसके बाद यूनिकनेस मालूम पड़ेगी। The time starts now. 15 seconds. Who are these people and what's unique to these people? I can start seeing chat responses. नमन सूद, क्या स्पीड है यार, गजब, गजब। Nimesh Chinoy, I'm so glad to see you there. Super, fantastic, right? Fantastic. Foot, पांडुरंग जी, फुटबॉल कोच नहीं, थोड़ा और सोचो, थोड़ा और सोचो, थोड़ा और सोचो। पांडुरंग जी, यू आर वेरी क्लोज, थोड़ा और सोचो, शायद आपके पहले को और बच्चा जीत जाएगा। वेरी गुड आयुष चोखानी, फैंटास्टिक, फैंटास्टिक, फैंटास्टिक। अमीना वीरानी, सुपर, फैंटास्टिक आंसर, ब्रिलियंट, ब्रिलियंट। अमोल मेहता, वेरी गुड। मैनेजर्स, पर तो थोड़ा लेट है, पहले दो जन का आंसर आ गया था। फैंटास्टिक, फैंटास्टिक गाइस, दीज आर फुटबॉल मैनेजर्स। I know Zidane is also an ex-player, an ex-player. I know that. I know that. Actually, मैं आपको एक honest confession करता हूँ. I'm a new learner in football era. मेरे को बहुत कम समझ में आता है फुटबॉल, ऑनेस्ट कन्फेशन है। सो मैंने इसका जब ये स्लाइड बनाया तो मैं मेरे बेटे को पूछा था, इस 19 यंग पीपल, तो वो फटाफट फटाफट ढूंढ निकालते हैं ये सब चीजें। तो मेरे को बोलता है कि डैड ये दे आर मैनेजर्स। मैं बोला ये वर्ल्ड के टॉप मैनेजर्स में आते हैं? बोलते हैं यस डैड, ये वर्ल्ड के टॉप मैनेजर्स में आते हैं। फैंटास्टिक, चलो वेरी गुड। सो गाइस, एनीवेज, व्हाट इज यूनिक टू दीस पीपल? लेट्स अंडरस्टैंड दिस। दे आर फुटबॉल मैनेजर्स, दे आर ऑल फुटबॉल मैनेजर्स, बट व्हाट इज यूनिक टू दीस पीपल? The most unique thing to these people is they are having their own, remember the word, they are having their own, I sense here chat box make response, let me see वो मेरा word use कर रहा है कि नहीं कर रहा है. I would be very happy. Naman, beta, they have their own style of playing. Naman, can you give me a better word and I will give full credit to you? Naman, give me a better word, give me a better word. You're almost there. Amol Mehta, give me a better word, beta. One word. Superb, superb. अरे आज खुशहाली, you are rocking, rocking. ऐसा लग रहा है कि you got a piece of my mind. Fantastic. These people have their own strategies.
They have their own strategies. I agree, Rishabh Chauhan. Instincts drive strategy. हमारे बहुत सारे फैमिली बिजनेस में हम लोग ऐसा बोलते हैं, इंस्टिंक्ट, हंचेस, ऐसा। मुझे लगता है कि इस बार ये ऑर्डर आएगा, इसीलिए मैं ये मेहनत करूंगा, मुझे लगता है। सो इंस्टिंक्ट, फैंटास्टिक पॉइंट खुशहाली, एंड लेट मी बिल्ड ऑन दिस। थैंक यू वेरी मच। व्हाट इज यूनिक टू दिस पीपल गाइस इज स्ट्रैटेजी। कोई भी फैमिली बिजनेस जब अपनी एक गेम खेलता है, यानी कि अपना बिजनेस करता है, तो अपनी खुद की एक स्ट्रैटेजी बनाता है कि क्या ये स्ट्रैटेजी सही है, ये अप्रोच सही है, मुझे इस व्यक्ति को आगे भेजना चाहिए, मुझे यहां पे 3 जन, यहां पे 2 जन, यहां पे बॉल को ऐसे पास कराना चाहिए, मैं फ्लिप में पास कराऊंगा, मैं ज्यादातर बैक शॉट करके आगे पास कराऊंगा, मेरे कितने प्लेयर आगे रहेंगे, कितने प्लेयर पीछे रहेंगे, किस तरह का फॉर्मेट होगा, कौन आगे नहीं पोजीशन होएगा, कौन नहीं, everything, strategizing where and what each person in the team will play a role is what these people do in a family business. The mentors, the fathers, the grandfathers, the chacha, mama, etc., those were the people who were strategists. एक काम कर, नहीं, एक काम कर, ये बैंक है ना, हाँ, तू मत जा, वो अपना जो मैनेजर है ना रमेश, उसको भेज। अरे पण पप्पा रमेश तो, अरे तू भाई शांति रख, ये बैंक के साथ अपना 40 साल का अकाउंट है, एंड रमेश ने जब प्यून था ना तब से वहां जाता है, वो बैंक वाला मेरे को जितना नहीं जानता उसको जानता है, वो काम हो जाएगा, तू उसको भेज। Sending the right person on the right job to make sure we get the right result. Strategy. These people make their own strategy. कभी डायमंड शेप होता है, कभी ऐसा ट्रायंगल शेप होता है, कभी इस तरह का अटैक फॉर्मेट, कभी इस तरह का अटैक फॉर्मेट। मैं मेरे बेटे का एक्सबॉक्स पे देखा था, पागल हो गया, पागल मतलब एक्चुअली पागल हो गया। मैं बोला ये क्या, व्हाट इज दिस, एक्सबॉक्स या PS4 आई थिंक ऐसा कुछ है, क्या खेलते, ठक 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 ठक, ऐसा आएगा, ऐसा शेप, ऐसा ऐसा शेप, ऐसा शेप, ऐसा, इतने सारे शेप बनते हैं। अरे 11 लोगों को कैसा अरेंज करने का, उसमें इतना सारा सोच। बोलता है कि डैड बहुत थिंकिंग जाता है। And then I do spend time watching some of these games to understand कि क्या actually ऐसा होता है, and it does happen. It does happen. Strategizing is a very, very super skill. I don't know how many of you remember, पर लास्ट का T20 जो हुआ था, उसमें शार्दुल ठाकुर ने बैक टू बैक 2 बॉल में विकेट लिया था। It was the place of where रोहित शर्मा did the positioning at this end and that end, and फटने के कैच आउट हो गए थे। Who does all those things, guys? The brain up there is doing the strategizing. रूल्स को याद करो, गेम से पहले शुरू करो। लर्निंग टू प्ले द फैमिली बिजनेस गेम। फर्स्ट थिंग, स्टार्ट अर्ली, जितना जल्दी हो सके उतना शुरू कर लीजिए। दूसरा रूल, जितना जल्दी हो सके उसके रूल्स को सीख लीजिए। ओके, क्योंकि जितना जल्दी रूल सीखोगे उतना ही जल्दी आप स्ट्रेटजी का हिस्सा बन जाओगे। एंड ट्रस्ट मी गाइस, जो जल्दी शुरू भी करते हैं, जो रूल्स भी अच्छा सीख लेते हैं, बहुत जल्दी स्ट्रैटेजिस्ट भी बन सकते हैं। क्यों? क्योंकि आप इस गेम में लंबे समय तक रह चुके हैं, इस गेम की नर्व को पकड़ लिया है, इस गेम के जेनेसिस को पकड़ लिया, आत्मा को पकड़ लिया, सोल को पकड़ लिया है। एंड द वंस हु कैन कैच होल्ड ऑफ दैट are the ones who are going to be extremely successful in the game of family business. My dear friends, family business बहुत सुपर्ब गिफ्ट है, फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। दे लव इट, चेरिश इट, बड़े प्राइड से वो जनरेशन इस जनरेशन को पास ऑन करता है, एंड नेक्स्ट जनरेशन उसके बाद पास ऑन करता है। जब आपके पास ये गिफ्ट आती है, तोहफा आता है, तो उस रैपर को ऐसा चीर फाड़ के खोलो मत। उस रैपर को समझो कि ये गिफ्ट तो तुम्हारे पास बहुत पहले से थी, आज तुम्हारे पास तब आई है जब आप इसके रूल्स को समझ सको। तो रूल्स को समझो, अटैक मत करो। कंस्ट्रक्शन में जा रहे हैं तो कंस्ट्रक्शन के कौन से रूल्स है सीखो।
आयरन एंड स्टील में है, रूल सीखो। गोल्ड ज्वेलरी में है, रूल सीखो। डायमंड में है, रूल सीखो। यदि रियल एस्टेट, अरे क्या कहते हैं, इंजीनियरिंग प्रोडक्ट में है, रूल सीखो। मार्केटिंग में हो, अपने ही बिजनेस में, पेपर में काम करते हो, स्टेशनरी में काम करते हो, रूल सीखो। जो भी धंधे में रूल सीखो। अरे कंप्यूटर के स्पेयर पार्ट का ट्रेडिंग करते हो या कंप्यूटर का ट्रेडिंग करते हो, रूल सीखो। जो भी धंधा है, रूल्स सीखो। तो गिफ्ट आई है, उसको खुलने का रूल सीखो, फिर उसको प्रैक्टिस करो, एंड प्रैक्टिस करने के बाद उसकी स्ट्रैटेजी बनाना ऑटोमेटिक सीखोगे। एंड दैट इज द थिंग दैट वी आर ऑल हियर टू लर्न. Nimish has very nicely mentioned. It is called the tricks of the trade. Correct? Correct. Tricks of the trade. Learn to strategize. But ये लोग का unique है. So just to help you summarize the whole thing that I have been talking about since last 45 minutes is this. A family business are very, very, very unique. दो बाजू बाजू में दुकान है सेम प्रोडक्ट की, ये भी दवाई की दुकान, ये भी दवाई की दुकान, ये भी बाकी का जनरल प्रोविजन रखता है, ये भी जनरल प्रोविजन रखता है, ये भी होम डिलीवरी करता है, ये भी होम डिलीवरी करता है। इसके पास भी छोटा सा व्हाट्सएप पे एक डेरिवेटिव ऐप जैसा कुछ बनाया, इसके पास भी और व्हाट्सएप पे ऑर्डर लेता है, डेरिवेटिव ऐप जैसा कुछ बनाया है। फिर भी एट द एंड ऑफ द डे इसका और इसका प्रॉफिट आर गोइंग टू बी रेडिकली डिफरेंट, रेडिकली डिफरेंट। क्यों? ये आपको सीखना जरूरी है, एंड दैट इज समथिंग दैट इज वेरी यूनिक। दे हैव देयर ओन रूल्स, दे हैव देयर ओन रूल्स। अपनी खुद की एक रूल बुक होती है, येलो कलर, ब्लू कलर, ग्रीन कलर, पर्पल कलर, एंड हर बार वो रूल बुक खड़ी हो जाती है जब अपने को कोई डिसीजन लेना है। रूल बुक इवॉल्विंग है, पहले दिन पे बैठ के लिखा किसी ने नहीं है, किसी ने नहीं है पहले दिन पे बैठ के लिखा। ये हुआ, अरे हाँ हम लोग हिस्टोरिकली क्या करते थे, ऐसा करते थे, तो अभी क्या करते हैं, एक काम करो ना भाई, अभी से एक रूल बना दो, ऐसा होएगा। अच्छा, अभी से एक रूल बना दो। हर रोज रूल हमारे चेंज होते हैं, हर रोज रूल हमारे चेंज होते हैं। सो दे हैव देयर ओन रूल्स, सो देयरफॉर जो चीज यूनिक होती है, जिसके अपने खुद के रूल्स होते हैं, it is better to start being a part of it as early as possible. क्यों? क्योंकि कोई लेट आता है ना तो मजा नहीं आता है। कोई 50 साल की उम्र पे यूएस में शिफ्ट हो गया, उसको अडेप्टेबिलिटी में तकलीफ होती है। यही व्यक्ति 5 साल की उम्र में शिफ्ट हो गया तो क्या उसको तकलीफ होएगी? उसका बोलने का एक्सेंट 3-4 साल में तो रेडी हो जाएगा। वो 50 साल वाला आदमी 10 साल के बाद भी एक्सेंट को पकड़ने की कोशिश करेगा, क्योंकि वहां के रूल्स अलग है, यूनिकनेस है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सेम थिंग इज अक्रॉस द वर्ल्ड। तो फिर फैमिली बिजनेस एक्सेप्शन क्यों होना चाहिए? घर का है इसलिए। अरे घर की मुर्गी दाल बराबर, ये कहावत है। फैमिली बिजनेस में घर की जो चीज है वही ताजमहल है, घर की जो चीज है वही अपनी बेस्ट है। एंड मैं ये खाली नहीं बोलता हूं, उसका हिस्सा हो चुका हूं। इसलिए, और उसका हिस्सा कैसे बना हूं? मेरे 4,500-5,000 बच्चों के कारण उसका हिस्सा बना हूं। आई एम अ पार्ट ऑफ अ फैमिली बिजनेस ऑफ मोर देन 5,000 फैमिली बिजनेसेस। आज उसको पेन होता है, मेरे को फोन आता है, मेरे को भी उतना ही पेन होता है। डिमोनेटाइजेशन के वक्त 8:30 बजे अनाउंसमेंट हुआ था, 8:45 मेरे को 5 स्टूडेंट का फोन बैक टू बैक बैक टू बैक बैक टू बैक। उन पांचों जन अपनी जो व्यथा बता रहे थे, उन पांचों जन के साथ मेरे को उतना ही पेन था जितना उनको हो रहा था। जीएसटी आया तो कितने लोगों की तकलीफ हुई, तो उनके साथ मैं हिस्से में था। ये लॉकडाउन पीरियड में, जब लास्ट ईयर 2020 में लॉकडाउन आया तो कोई लोग बोला कि सर मेरे को ये ऑर्डर में तकलीफ हुआ, कोई बोला मेरे को ये तकलीफ हुआ, कोई बोला ये तकलीफ हुआ। तो वो तकलीफ उसकी नहीं, वो तकलीफ मेरी थी। और मैं उसको बोलता था एक काम कर, तू इससे बात कर, शायद तेरी तकलीफ खत्म हो जाए, तू इससे बात कर, तेरी तकलीफ खत्म हो जाए, तू इससे बात कर। मैं उसकी तकलीफ को रिजॉल्व करने की कोशिश कर रहा था। क्यों? क्योंकि उसकी तकलीफ मेरी तकलीफ है। I'm a part of it. I'm a part of it. मेरे जो डायरेक्टर्स है परिमल सर, वो तो इस फैमिली बिजनेस के मॉडल से लगभग 40 साल से उसका हिस्सा है। उन्होंने तो मेरे से भी जल्दी शुरू किया था। जस्ट इमेजिन somebody who starts so early, उसको कितना इंस्टीट्यूशनलाइज हो गया होगा, कितना अंदर घुस गया होगा। वो हमारा खून है, डीएनए है।
तो ऐसे डीएनए के साथ आइए, हिस्सा बनिए, फैमिली बिजनेस में जुड़िए, शंका के साथ नहीं बल्कि पुर आक्रोश पुर जुनून के साथ ज्वाइन करिए, ये सोच के कि नहीं, ये धंधा ही अल्टीमेट चीज है जहां पे मेरे को रहना है. ओके, डोंट गो विथ अ डाउट बट गो विथ एन असर्टेननेस, गो विथ ए कंफर्मिटी, डोंट गो विथ अ कंडीशन, गो विथ फेथ एंड ट्रस्ट. शंका नहीं, विश्वास के साथ जाओ, इरादा लेके जाओ, ऐसा अभिगम लेके जाओ कि मैं अपने फैमिली बिजनेस में अब तक जितने लोगों ने जितना योगदान दिया है उससे नेक्स्ट लेवल पे लेके जाऊंगा. एंड इसके लिए लास्ट लाइन, डोंट वॉन्डर, इधर उधर घूमो मत, भटको मत, क्योंकि बिना एड्रेस का लिफाफा कहीं पे भी घूमता है, पर जिस लिफाफे पे एड्रेस लिखा होता है वो अपनी सही जगह पे जाता है. आपकी लाइफ का जो लिफाफा है उसके ऊपर एड्रेस लिखा हुआ है, आपका पारिवारिक बिजनेस, फिर इधर उधर क्यों जाना? बी अ पार्ट ऑफ इट एंड join it, and join as early as possible, learn the rules so that you can end up making strategies for life, of your business and for your family. With those words, guys, I wish you all the best. Have a great time and a very super life to each and everyone listening to this wonderful webinar that we have. I'm open to take any questions if anybody has, or else it was wonderful having you guys here. I wish you all the best. Have a great time. God bless you. And I sincerely appreciate the time that you have given and the time that you've devoted for this. I also appreciate Deepal madam to be there, and I also appreciate Akshay Dedia to be there, because आज सुबह Zoom का कुछ प्रॉब्लम हो गया था, तो दोनों थोड़े जिटरी हो गए थे कि हो सकता है कि आज नहीं होए, और मैं दीपक मैडम को जोक कर रहा था. इनफैक्ट 11:15 हम लोग बात किए थे, मैं बोला कि नहीं मैडम, होएगा तो जरूर, हमारा इरादा ऐसा है. And as I said, ये कामयाब हुआ है. So Akshay, very good. Deepal madam, very good. Thank you very much, both of you, and wonderful participants, guys. Have a great, wonderful Sunday. Have a great time. God bless you guys. Chill. Enjoy and have a great time. Thank you very much. In case now anybody has any question, would like to put forth, you can, or else Deepal madam, I'm not sure she would be there because of the kid and her husband, but we can. I am there, sir. Oh, very good. Deepal ma'am, thank you very much. Okay, with the way things change these days, won't strategies need to change on a regular basis? We call that evolution. Pandurang Nayak, we call it evolution. मतलब जैसा है वो आगे चेंज होता है, क्योंकि एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है तो हम चेंज करते हैं. एंड कुछ हद तक हमारे जो ये मैंने जो लास्ट में इमेजेस बताई थी, वैसे लोग दे कीप ऑन चेंजिंग इट, दे आर कैपेबल ऑफ चेंजिंग इट. सो इट्स गुड. एंड आजकल मैंने ये भी देखा है कि एल्डर जनरेशन या अर्लियर जनरेशन यंगर जनरेशन के साथ, सलाह रॉन्ग वर्ड है, डिस्कशन जरूर करते हैं, मशवरा ओपिनियन जरूर लेते हैं. एंड वो ओपिनियन लेके फिर दे स्टार्ट इवॉल्विंग कि हाँ ठीक है, ये भी एक तरीका है, ये भी एक तरीका है, थिंग्स लाइक दैट. या सो इट डज चेंज एंड इट हैज टू चेंज, इट विल चेंज. ओके, गुड. ऑलराइट, एनीबॉडी एल्स? Thank you, have a great time. All right, so Deepal madam, thanks very much. I'm sure people had we can see some responses, so I think no more questions, we can call it a day. And wish you all the best, guys. Have a great time. We are family of 17 years. We need feedbacks to professionalize and scaling up. Would you be a part of a feedback? Satyan, I can be a part of the feedback. For that, what only thing you have to do is you will have to get in touch with me. What you can do is, Deepal madam, Yes, sir. you can share our contact detail with Satyan Shah, Yes, sir. and then we can take it forward from what his query is. Yes, sir. Okay. Yes. So please take it forward from there. Satyan, Deepal madam will get in touch with you. Okay. That will be all. That's good. Thank you. All right.
Okay. Deepa ma'am, Satyan has placed his contact number in case you would like to take a note, make a note of it. Yes, sir. Yes, Rishabh. Is it necessary to start early? Yes. As soon as possible is the right answer. So, Rishabh, learning through education and starting early are two different things. You can always learn through education and you can always be a part of the family business. You can always be a part of the family business and learn through education. Very, very common thing. Because in case you go to college, it's not the full time that you are going to be there. So you can obviously be a part of it. Right. Ayush, for you, Deepal madam will get in touch with you. Ayush, can you please place your phone number here so that Deepal madam can get in touch with you? Yeah. So Deepal madam, Ayush Noted. has a question and you may please help him to resolve it. Yes, sir. All right. I'm very happy with a couple of good questions coming in. Fantastic. So please, in case anybody has any other question, please place it. It would be nice to resolve any question you have. Rishabh Mehta, are you still there? ऋषभ मेहता, आर यू स्टिल देयर? ऋषभ, मैं तुमको ना एक इंटरेस्टिंग किस्सा सुनाता हूं, ध्यान से सुनो. ओके, फॉर ऑल द अदर वंस आल्सो एडवांटेज हो जाएगा. तो मेरे बेटे का ना 14th बर्थडे था एंड मैंने उसको बोला कि बेटा तेरा बर्थडे है तो तेरे पास दो चॉइस हैं. मैं तेरा बर्थडे सेलिब्रेट कर सकते हैं, हम लोग मतलब आई एंड माय वाइफ ऑब्वियसली सेलिब्रेट तेरा बर्थडे करेंगे, तेरे फ्रेंड्स को बुलाएंगे, लगभग 15-1 हज़ार रुपए का खर्चा भी होएगा. ओके. एंड दूसरा ऑप्शन है कि तू उसको इन्वेस्ट कर. अब ये 14 साल का लड़का है तो मेरे को बोलता है कि डैड मैं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करूं. तो मेरी क्यूरियोसिटी बढ़ गई. मतलब तूने ये म्यूचुअल फंड वर्ड कहां से सुना? बोले आप और मम्मी बोलते रहते हैं तो मेरे को मालूम ऐसा कुछ चीज है. क्या है ये मुझे नहीं मालूम है. मैं बोला हाँ करेक्ट है, ऐसी कोई चीज जरूर है लेकिन क्या है तुझे नहीं मालूम है, विच इज ओके. देन आई एक्सप्लेन टू हिम, थोड़ा समझा थोड़ा नहीं समझा. उसने बोला हाँ हाँ ठीक है ठीक है, हाँ हाँ ठीक है ठीक है, हाँ हाँ ठीक है ठीक है. पर वो मदर एंड गार्डियन का जो कंसेप्ट होता है उसमें माइनर ले सकते हैं, ऐसा कुछ था. तो ऐसा करके उसका कुछ 14-15 हज़ार रुपए का लिया. एंड फिर भी उसने बोला कि डैड मेरी तो पार्टी होने वाली है. तो बोला बेटा 15 हज़ार तो हमने वो इन्वेस्ट कर दिए, तो तेरी पार्टी कहां से होने वाली है? बोले आप ही हमेशा बात करते रहते थे ना कि बिजनेस में देर आर डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स. मतलब हाँ बराबर है लेकिन क्या? बोले बिजनेस में एक मेथड भी है ना, रिसोर्स एग्जिस्ट आउटसाइड. बोले हाँ तो? बोले आपका पैसा मैंने इन्वेस्ट कर दिया तो वो आप मेरे को देने ही वाले थे. हाँ, पर मैंने फिर दादा को फोन करके पूछा कि दादा मेरी बर्थडे है, आप मेरे को कुछ हेल्प नहीं करोगे? तो दादा ने बोला तेरे को कितना चाहिए? तो उन्होंने मेरे को 15 हज़ार रुपए दे दिया. तो मैं पार्टी अभी भी किया लेकिन दादा के पैसे से. मैं बोला क्या चीटर आदमी है. देन माय वाइफ स्टार्टेड लाफिंग लाउडली एंड सेड देखा वहां ज्यादा सिखाने का मतलब. मैं बोला ये तो बात बरोबर है कि ज्यादा सिखाने का गलत मतलब या सही मतलब तो बात की बात है. इंटरेस्टिंग ये है
when he was a kid, he was hearing and learning. तब जाके उसको कंसेप्चुअली चीज भी मैच करने का स्कोप या आवड़त आ गया। ऋषभ, जितना जल्दी हो सके ने उतना जल्दी अपने बिजनेस का हिस्सा बनते हो ने, तो उसके टर्म्स, उसके जार्गन्स, उसके कंसेप्ट, उसके न्यूएंसेस, उसके पॉलिसीज, मेथड्स, इन आउट क्या होता है, कौन से बेसिस पे डिसीजन लिया जाता है, ये सब तू इतना अच्छे से सीख पाएगा कि जितना तू सोच भी नहीं सकता। मैं एक और एग्जांपल देना चाहता हूं। माय सिस्टर्स डॉटर, शी इज 8 years एंड मैं उसके साथ बहुत बार अलग अलग चीजों पे बात करते रहता हूं। ओके, मैं बोला वृषा ऐसा होता है, वृषा ऐसा होता है। आज वो मेरे से जब बात करती है ना, सेम सेम दैट, अभी ये लॉकडाउन की बात है, व्हेन आई मेट हर एंड ऑल दैट, एंड मैं 8 महीने में उसके में ऐसा डिफरेंस देख रहा हूं, जो मेरे को बोलती है कि मामा आपको जूम पे एक चीज कनेक्ट करना सिखाऊं। मैं बोल सिखा। एंड द वे शी टीचेस मी, मैं उसको बोलता हूँ, मैं उसको मेरी मेरी सिस्टर को बोले इसको कैसे आता है, बोले भाई ये बहुत ऐसे ऐसे एक्सपेरिमेंट करती रहती है, एक्सपेरिमेंट करती रहती है। अब एक्सपेरिमेंट करना या ये करनी अच्छी बात है, वो उसके दिमाग में किसने फीड किया होगा। स्टार्टिंग अर्ली गाइस, जितने अर्ली स्टार्टर्स हैं ना, वो इतना जल्दी अपना ग्राफ को फटाफट, क्योंकि उनका लर्निंग का बहुत क्विक होता है, फट 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 अडॉप्ट करते हैं, जुप ऊपर चले जाते हैं। एंड दैट्स इंटरेस्टिंग टू सी। एनीवेज ऋषभ, think about it. ज्यादा जरूरत पड़े, you might get in touch with Deepal madam to understand more about it. You can please place your phone number. Deepal madam will get in touch with you. Satyen, you have a question. Very good. सत्यन, आपकी बात एकदम सही है। मेनी थिंग्स ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम लेयर्ड हो जाती है। लेयर्ड मतलब एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर जम जाता है। एंड बिकॉज ये जम जाता है ना, हम लोग के दिमाग में ऐसा एक हो जाता है कि नहीं भाई ये चीज ऐसी ही होनी चाहिए। मैं सत्यन एक बात बताता हूं। परसों आई वॉज इन पुणे एज अ पार्ट ऑफ वन ऑफ माई ओएमपी पार्टिसिपेंट, और उसने मुझे इनवाइट किया था कि ये हमारे ओएमपी मतलब मेरा ओनर मैनेज प्रोग्राम, और हम लोग एक बिजनेस डिसीजन लेने जा रहे थे। तो समीर सर आप आके बैठो और बताओ कि हमारी कहां कहां कितनी गलती हुई है। सत्यन, मैं 10:05 को उस मीटिंग में स्टार्ट हुआ, सुबह 7 बजे अंधेरी से निकला। 10:05 को मैं मीटिंग में बैठा, 3:05 एग्जैक्टली, मैं इसलिए इतना प्रिसाइसली बोल रहा हूं क्योंकि मैंने घड़ी देखा, क्योंकि मुझे 2 बजे वहां से निकल जाना था, मुझे 4:15 बजे नवी मुंबई एक मीटिंग में पहुंचना था। पर फिर भी मैं 3:05 तक कंटिन्यूस बैठा रहा, और उस कंटिन्यूस टाइम पे हम लोग ने उसको ये क्वेश्चन पूछा, ये क्वेश्चन। तो उस मीटिंग में 2 जन बैठे थे, एक का उम्र 55 का था, एक का उम्र 48 का था। 48 वाला चलते चलते मीटिंग में ऐसे स्टेज पे आ गया। Yeah, that's right, Mr. Dalal. Yeah, that's right. But yeah, नहीं, मुश्किल है, बहुत मुश्किल है चेंज करना। सुनते जाओ, 48 वाला आदमी ऐसा नहीं जमेगा, नहीं जम, अरे नहीं यार, मतलब सर ये बहुत। एंड दैट गाय एट 55 इज टेलिंग मी, समीश भाई इफ यू डोंट माइंड, मैं ये बिजनेस प्लान रिकास्ट करूं क्या? तो क्यों नहीं, मतलब आप जो बोल रहे हैं उन चीजों को फैक्टर करेंगे तो थोड़ा रिकास्ट तो करना पड़ेगा ना। आप बोलो तो मैं रिकास्ट कर देता हूं, मुझे आप कर सकते हैं 100%, वो कौन सी बड़ी बात है। अपना दिमाग बंद नहीं हुआ है। यदि आप बोलते हैं और आपकी 2-3 चीजें मेरे को कन्विंस भी हो रही है, तो ट्राई कर सकते हैं। अब तक जो ट्राई किया उसमें ये रिजल्ट मिला, ये पक्का है। आपकी चीज नहीं है, उसको ट्राई करेंगे, रिजल्ट शायद अलग मिले। व्हाट इज रॉन्ग इन अटेम्प्टिंग? सत्येन, व्हाट इज रॉन्ग इन अटेम्प्टिंग? ये जो कैपेबिलिटी है ना, वो बातें करने से खुलती है। तुम जो कह रहे हो वो बात बरोबर है। बहुत सारे फैमिली बिजनेस के लोग एक स्टेज के बाद बंद दिमाग से काम करते हैं। आई एग्री, लेयर्स हो गए, एक्सपीरियंस का लेयर। ऐसा ही होना चाहिए, ऐसे ही होना चाहिए। घर के अंदर एंट्री लिया तो जूता निकाल के आओ, जूता पहन के हरे, करेक्ट।
रूल बन गया, फिर उसके बाद बंदा एक्सट्रीमिस्ट बन जाता है, फंडामेंटलिस्ट बन जाता है, ऐसे ही होना चाहिए। अब थोड़ा चेंज करो, बंदे को हर्ट होता है। बट व्हाट आई हैव रियलाइज्ड इज, आज की तारीख में देयर इज ए पोर्शन ऑफ द फैमिली बिजनेस का एक जनरेशन, मे बी माहौल का नतीजा है, मे बी एक्सपीरियंस का है, पता नहीं क्या है। व्हाट इज द इन्फ्लुएंसर, आई डोंट नो. What is the driver, I don't know. But I have seen that there's a fair percentage of people who are now becoming opened up, who are now opening up to newer things. And I think that's a very, very important thing. सब लोग ओपन नहीं होंगे, that's also reality. सब लोग ओपन होके दिखाएंगे लेकिन वो अडॉप्ट नहीं करेंगे, वो भी एक रियलिटी है। बट फिर भी खुलेंगे जरूर। तो सब नहीं, लेकिन थोड़े थोड़े खुलने लगेंगे। एक स्टेज के बाद बाकी लोग भी खुलेंगे। आई एम कॉन्फिडेंट अबाउट इट। एंड देयर विल बी सर्टेन परसेंटेज ऑफ पीपल जो 100% खुलेंगे नहीं, बट दैट्स फाइन, वी कांट डू मच अबाउट देम। पर जितने लोग खुल सकते हैं या जो प्रयत्न भी करने की कोशिश करते हैं ना, मैं उस व्यक्ति को अपना 100% दे दूंगा, जिसके कारण मे बी व्हेन आई गिव दैट 100%, दैट पर्सन माइट बिकम लिटिल मोर ओपन and might become from a confirmed person to more of a conversationalist. So let's see. Yeah. All right. So thank you guys. Thank you very much. I hope we all enjoyed the participation. Brilliant questions and brilliant participation by a wonderful people. Deepal ma'am, thank you very much. And Akshay, thank you to you as well. We'll see you guys maybe when our next such webinar is being planned. I'll ask Deepal madam and Akshay to plan something and we'll update you guys about our next session. God bless you guys.